Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. We welcome you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारा प्रभु और हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में आप सभी का स्वागत है। I'm so glad to be here and I'm thankful to Almighty God. और मैं सर्वसमर्थ परमेश्वर को धन्यवाद बोलता हूँ। And even I'm glad that Lord has answered all our prayers. और मैं बहुत खुश हूँ कि परमेश्वर ने हमारे सभी जो प्रार्थना का उत्तर दिया। So I'm thankful for the He Foundation. और जो ही फाउंडेशन है मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। And dear brother Mark. और ब्रदर मार्क। And all the people, those who are watching me live right now. और जो लोग मुझे आज लाइव देख रहे हैं। Since from a few months, just we are focusing on the book of Revelation. और कुछ महीनों से हम प्रकाशित वाक्य इस पुस्तक पर हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। And Lord has revealed us several things these days. और प्रभु ने बहुत सारी प्रकाशन हमें दी है इस As दिनों में। these days the virus has spread everywhere, and now the people, they are more focusing on the word of God. और जैसे कि इन दिनों में ये जो वायरस है वो बहुत ही उसका प्रसार हो चुका है और लोग जो है परमेश्वर के वचन पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। So whatever is happening in the world, इसलिए जो भी इस जगत में हो रहा है, it is written in the Bible. ये सब कुछ बाइबल में लिखा हुआ है। Hallelujah. हालेलुया। Is that God is awesome? और अपना परमेश्वर अद्भुत है। If you feel the Lord is mighty and He is able to do the great and mighty work, और अगर आपको लगता है कि हमारा जो परमेश्वर है वो सामर्थ्यशाली है और वो बहुत ही महान कार्य करता है, I want you to type Amen in the comment box. मैं चाहता हूँ कि तब आप कमेंट बॉक्स में आमेन टाइप कीजिए। Amen. Hallelujah. हालेलुया। So before getting into the word, I would like to pray. और वचन में जाने से पहले मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। Just close your eyes, we'll pray together. हम अपने आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory, glory, glory. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Just praise Him. Just give Him glory and honor to His name. प्रभु को धन्यवाद दीजिए, उसे स्तुति आराधना दीजिए। Thank Him for this wonderful time. और प्रभु को धन्यवाद बोलिए इस अद्भुत समय के लिए। Thank Him for this wonderful time. और ये अद्भुत समय के लिए प्रभु को धन्यवाद। There is no one else is like Jesus. और प्रभु यीशु की तरह कोई भी नहीं है। Give Him praise and honor to His name. उसे स्तुति और गौरव और आराधना हम Worship Him, praise Him, praise Him, praise Him, church. उसकी स्तुति आराधना हम करेंगे चर्च। Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. मेरी रूह को, मेरी जान को, मेरे बदन को छू, मेरी रूह को, मेरी जान को, मेरे बदन को छू, छू मुझे छू, खुदा रूह मुझे छू, छू मुझे छू, खुदा रूह मुझे छू. Loving Heavenly Father, we come to you in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्यारे स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। Abba Father, और पिता परमेश्वर, we give you glory for sending Jesus for us. हम आपको आदर और महिमा देते हैं कि आपने प्रभु यीशु को हमारे लिए भेजा। We were unworthy people, but through the blood of Christ, we are the chosen one right now. और हम इस लायक नहीं थे परमेश्वर, लेकिन जो प्रभु यीशु के लहू से हमें You washed us. और आपने हमें धो दिया। And you have chosen us for your marvelous work. और आपके काम के लिए आपने हमें चुना। Thank you, Jesus, for your blessings. आपके आशीषों के लिए धन्यवाद प्रभु। Abba Father, as tonight we are ready to meditate upon your precious word. और पिता परमेश्वर, आज रात आपके वचनों पर हम जो मनन करने वाले हैं, We rebuke every hindrance right now in the name of Jesus. और हर एक अड़चन हम प्रभु यीशु के नाम से डांटते हैं। Holy Spirit, speak to us.
और पवित्र आत्मा आप हमसे बातें कीजिए Guide us, Lord. और हमें आप गाइड कीजिए Let the river of your living word shall flow right now. और आपके जीवंत जो जल है वो हमारे बीच में बहने पाए प्रभु। Bless your people tonight. आपके लोगों को आज आशीषित We कीजिए। believe the lips are mine, but the words are coming from heaven. मुझे विश्वास है कि वो मेरे है, लेकिन जो वचन है वो स्वर्ग से आ रहा है। Speak to your people, Lord. आपके लोगों से आप बातें कीजिए। We give you glory and honor to your name. आपके नाम को धन्यवाद और महिमा देते हैं। In Jesus' matchless name we pray. प्रभु यीशु के अमूल्य नाम से मांगता हूं, इसलिए आप सुनिए। Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Can you type amen? क्या आप आमेन टाइप कर सकते हैं? Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Dear brothers and sisters, और प्रिय भाइयों और बहनों, as you have seen the title of my sermon today, और आज जो मैं वचन बोलने जान रहा हूँ What उसका the- टाइटल आपने देखा ही होगा। what the God has given me in my heart. और जो परमेश्वर ने मुझे मेरे हृदय में दिया है, The heaven is not for the losers. और जो स्वर्ग है जो हारने वाले लोग हैं उनके लिए स्वर्ग नहीं है, But the heaven is for the people who conquer or the people who overcome. और जिन लोगों ने जय पाए हुए लोग हैं उनके लिए ये स्वर्ग है। I'm telling you from the scriptures, और मैं वचन में से आपको ये बताना चाहता हूँ, heaven is not for the losers. और जो हारे हुए लोग हैं उनके लिए स्वर्ग नहीं है। Hallelujah. We are the people, Jesus is calling us not only the conqueror, but we are more than the conquerors. और प्रभु यीशु ने हमें विजयी नहीं लेकिन महाविजयी घोषित किया है। Can you say amen to क्या that? आप इसके लिए आमीन बोल Just सकते हैं? type, I am more than a conqueror. ऐसा टाइप कीजिए कि मैं महाविजयी हूँ I am a victorious person और मैं जय पाया हुआ व्यक्ति हूँ through the blood of Jesus, प्रभु यीशु के लहू के through द्वारा, the word of Jesus, प्रभु यीशु के वचन के द्वारा, through the power of प्रभु Jesus. यीशु के सामर्थ के द्वारा। Amen. आमीन। So, turn your Bible to Revelation chapter 2 and verse 7. और अपना बाइबल हम खोलेंगे और प्रकाशित वाक्य इसका दूसरा अध्याय, Let's read chapter 2 and verse 7. दूसरा अध्याय और 7वां वचन हम पढ़ेंगे। He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will give the right to eat from the tree of life, which is in the paradise of God. Amen. जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। Amen to that. आमीन। As we can see in the book of Revelation chapter 2 and chapter 3, और जैसे हम प्रकाशित वाक्य की जो पुस्तक है उसका दूसरा और तीसरा अध्याय देखेंगे, in these two chapters you can see for 7 times Lord is saying those who overcome, those who overcome, those who और इस overcome. दोनों जो अध्याय में है प्रभु ने 7 बार ऐसा बोला है कि जो जय पाए हुए हैं, जो जय पाए हुए हैं। If you overcome, अगर आपने जय पाया है, God is ready to bless you. परमेश्वर आपको आशीषित करने के लिए तैयार है। Heaven is not for the losers, और जो स्वर्ग है वो हारे हुए लोगों को नहीं है, उनके but लिए नहीं है। heaven is for the victorious people. लेकिन जो जय पाए हुए लोग हैं उनके लिए स्वर्ग है। Heaven is for the overcomers. और जो जय पाए हुए हैं उनके लिए स्वर्ग है। Revelation chapter 2 verse 7, और प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय 7वां वचन, chapter 2 verse 11, दूसरा अध्याय और उसका 11वां वचन, second chapter verse 17, दूसरा अध्याय 26 और 27 अध्याय, 17th verse, 17 अध्याय and second chapter 26 27, और दूसरा अध्याय उसका 26 और 27 वचन, Revelation chapter 3 और प्रकाशित वाक्य उसका तीसरा अध्याय verse 5, उसका 5वां वचन, Revelation chapter 3 verse 12, प्रकाशित वाक्य उसका तीसरा अध्याय और 12 वचन, Revelation chapter 3 verse 21. और प्रकाशित वाक्य इसका तीसरा अध्याय और 21 All वचन। these scriptures says that those who overcome, और ये
सारे वचन यही बताते हैं कि जो जय पाए हुए हैं, If you are an overcomer, God is going to bless you in heaven. अगर आप जय पाए हुए हैं तो परमेश्वर स्वर्ग में आपको आशीषित करेगा। Hallelujah. Hallelujah. The great reward for you is waiting in heaven. और एक बड़ा रिवॉर्ड आपके लिए स्वर्ग में रखा हुआ है। Luke chapter 11 और लूका की किताब 11वां अध्याय and verses 20, 21 and 22. और उसका 20, 21 और 22 वचन। Jesus, he gave one parable. और प्रभु यीशु ने यहाँ पे एक पैराबल दिया है। But what he said, लेकिन उन्होंने क्या कहा है? the stronger person और जो सामर्थ्यशाली व्यक्ति attacks है and overpowers. He can attack. वो चढ़ाई करता है। Hallelujah. And he can overcome. और He वो can जीत become लेता है। victorious. और वो जीत लेता है। Heaven is not for the weak people. और जो वीक लोग हैं उनके लिए स्वर्ग नहीं है। Hallelujah. Hallelujah. Even though we were weak, अगर हम वीक भी है, the power of God, the blood of Jesus, the word of God, the blood of Jesus can make us stronger. लेकिन परमेश्वर का लहू, परमेश्वर का सामर्थ्य हमें सामर्थ्यशाली बनाता है। But you don't have the name of Jesus. लेकिन आपके पास अगर यीशु का नाम नहीं And है, you say, I am weak, I don't have Jesus in my life. और आप कहेंगे कि मैं परमेश्वर सामर्थ्यशाली नहीं हूँ, Heaven is not for the losers. फिर ऐसे लोगों के लिए जो हार गए हैं, उन लोगों के लिए Type स्वर्ग something, नहीं है। say, I am a victorious person. कुछ टाइप कीजिए और कहिए कि मैं सामर्थ्य में जय पाया हुआ हूँ। Say, I am a overcomer. और बोलिए कि मैं जय पाया हुआ हूँ। I love that Hindi song. और मुझे ये हिंदी सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है। जय मेरा है, जय मेरा है, जय मेरा है, जय मेरा है, जय आज मेरा है। सारी दुष्ट आत्माओं पीछे भागो, जय आज मेरा है, जय मेरा है। Can you sing? जय मेरा है, जय आज मेरा है। सारी दुष्ट आत्माओं पीछे भागो, क्योंकि जय आज मेरा है। यीशु मेरा है, यीशु मेरा है, यीशु आज मेरा है। सारी दुष्ट आत्माओं पीछे भागो, क्योंकि जय आज मेरा है। यीशु मसीह की जय। Amen. So when you follow Jesus, जब आप प्रभु यीशु के पीछे चलोगे, I challenge you in the name of प्रभु Jesus. यीशु के नाम में मैं आपको चुनौती देता हूँ। Your poverty will change into the riches. आपकी जो गरीबी है वो आपकी रिचेस में बदल जाएगी। Your sickness will turn into the health. और आपकी बीमारी चंगाई में बदल जाएगी। Because there is power in the name of Jesus. क्योंकि प्रभु यीशु के नाम में सामर्थ्य है। Hallelujah. Hallelujah. Believe in the scripture of और God. परमेश्वर के वचन पर आप विश्वास रखिए। We don't serve any dead God. हम किसी भी मृत परमेश्वर की सेवा नहीं Our करते। God is alive. हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर And है। when you follow Him, और जब आप उनके पीछे चलोगे, hallelujah. हालेलुया। Because in John chapter 1 and verse 12, यूहन्ना की किताब chapter 1, 12 अध्याय, chapter 1 पहला अध्याय and verse 12, और 12 वचन, those who believe in Jesus, और जो प्रभु यीशु पर विश्वास रखते they हैं, all are children of Almighty वो God. सभी प्रभु यीशु के जो बच्चे हैं। Are you the child of God? आप परमेश्वर के बच्चे हो? Say, write down there, just comment there. कमेंट कीजिए कि आप परमेश्वर के संतान हो। I am a child of God. मैं परमेश्वर की संतान हूँ। Just I'm watching you. और Yes. मैं आपको देख रहा हूँ कि आप टाइप कीजिए। If you are a child of God, just type it. आप I am a child of God. टाइप कीजिए कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ। Amen. आमीन। When you say I am a child of God, और जब आप बोलते हो कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ, then what does the Bible says for the children of God? फिर बाइबल जो परमेश्वर की संतान के लिए क्या बोल रही है? 1 John पहला यूहन्ना chapter 5 5वां अध्याय and verses 4 and 5. चौथा और 5वां वचन, For everyone born of God overcomes the world. क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। Can you say amen to that? आमीन।
These scriptures are written in the Bible. और ये सब वचन बाइबल में लिखे हुए हैं। When you say, I am born of और God, जब आप बोलते हो कि मैं परमेश्वर से जन्मा you हूँ, will overcome the world. आप इस जगत पर, संसार पर जय प्राप्त करेंगे। Whatever may be the problems, the situations you are going through, और जो कुछ भी समस्या है, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है, God will change every situation upside down for you. और आपके लिए परमेश्वर हर एक जो प्रॉब्लम है वो निकाल देगा। Believe in प्रभु Jesus. यीशु पर विश्वास रखिए। So many people, they pray like this: और बहुत से लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं, God, I am a donkey. परमेश्वर मैं तो गधा हूँ, I am an insect. और मैं एक छोटा सा कीड़ा हूँ, Lord, I am the dust. और परमेश्वर मैं तो धूल हूँ, Lord, I am zero. I am nothing. प्रभु मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। Hallelujah. My brothers and my मेरे sisters, भाइयों और बहनों, stop praying like this. इस तरह से प्रार्थना मत कीजिए। You are the chosen generation. आप चुने हुए वंशज हैं। You are the children of Almighty आप God. परमेश्वर की संतान हैं। Hallelujah. You are not the donkey. आप गधे नहीं हैं। You are not the insect. आप कीड़ा नहीं हैं। You are not zero. आप शून्य नहीं हैं। But say, I am a blessed person. लेकिन ऐसा बोलिए कि मैं आशीषित I व्यक्ति am a हूँ। blessed child of God. मैं आशीषित परमेश्वर की संतान हूँ। I am a kingly priesthood. और मैं Royal महायाजक हूँ। priesthood. Yeah, yes. महायाजक हूँ। Amen. Amen. Hallelujah. We are the children of God. We are the people who are born of God. हम परमेश्वर की संतान हैं और हम परमेश्वर से उत्पन्न किए गए हुए हैं। Hallelujah. Hallelujah. We are the overcomer on this world. और इस संसार पर हम जय पाए हुए लोग हैं। So fourth verse, the Bible says that for everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. और चौथा वचन, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। Fifth verse, who is it that overcomes the world? Only the one who believes that Jesus is the Son of God. और पांचवा वचन, संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। Can you say amen? आमीन। Do you believe that the Jesus is the Son of God? आप विश्वास रखते हैं कि प्रभु यीशु परमेश्वर की संतान है? Hallelujah. Hallelujah. If you are finding failure everywhere, अगर आप हर जगह आपको निराशा मिल रही है, if you are seeing I'm getting failure in my ministry, in my business, in my studies, if you are seeing failure in your life, और हर जगह पर आपको हार मिल रहे है, आपके बिजनेस में, आपके स्टडी में, आपके काम में, हर जगह पर अगर आप हार रहे हैं, if your life is with up and downs, अगर आपके जो जीवन है ये बहुत सारी मुश्किलों से भरा है, I want you to focus on Jesus मैं tonight, चाहता हूँ कि आज रात आप प्रभु यीशु पर अपना ध्यान केंद्रित because कीजिए। my Bible says that क्योंकि मेरा बाइबल मुझे ये बताता है, those who believe that the Jesus is the Son of God, जो इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, they will overcome the world. वो इस जगत पर, इस संसार पर जय प्राप्त करेंगे। After believing in Lord Jesus, प्रभु यीशु पर विश्वास करने के बाद my life changed completely. मेरा जो जीवन है वो पूरी तरह से बदल गया। I don't have such testimony like I was a drunkard, I did this and that. I don't have such testimony. और मेरी ऐसी गवाही नहीं है कि मैं शराबी था या फिर मैं बुरी आदतों में था, ऐसी कोई मेरी गवाही नहीं है। I am born and brought up into the Christian family. और एक मसीही परिवार में जन्मा हूँ और बड़ा हुआ हूँ। My parents, they are believers. और मेरे जो माता पिता है वो विश्वासी है। But I would like to tell you one thing. लेकिन मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूँ। At the age of 15, 15 साल की उम्र में, when I had some problems in my life और मेरे जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं थी, and I wanted to commit suicide. और मैं चाहता था कि मैं अपने जीवन का अंत कर दूं। But on very same day, Jesus visited me और उसी दिन परमेश्वर ने मुझसे भेंट कर ली and He saved me. और उसने मुझे बचाया। Committing suicide और is not the solution, अपने जीवन का अंत करना ये किसी भी बात का उत्तर नहीं है, but Jesus Christ is the answer for every prayer. लेकिन जो प्रभु यीशु है वो हर एक प्रार्थना का उत्तर है। So tonight, if you will ask Him,
अगर आप आज रात अब आप उनसे कुछ मांगोगे, as He saved me, जैसे उन्होंने मुझे बचाया as He saved Dr. Pallavi, और जैसे उन्होंने डॉक्टर पल्लवी को बचाया, He will save you tonight. वो आज रात आपको भी बचाएगा। Are you surrounded with the problems? अगर आप समस्याओं से घिरे हुए हैं, Believe in Jesus. प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए। So I'm not telling you that Jesus will heal you, Jesus will prosper you, just He will do these things only. मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि प्रभु यीशु आपको सिर्फ चंगाई देंगे या फिर आपको बहुत ही प्रॉस्पेरिटी देंगे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। But after believing in Jesus, लेकिन प्रभु यीशु पर विश्वास करने के you बाद will become an overcomer आप एक महाविजयी हो जाएंगे and और you will receive the gift of salvation. और आपको उद्धार का गिफ्ट मिलेगा And this is the free gift. और ये बिल्कुल ही मुफ्त है And this is from Lord Jesus और Christ. ये प्रभु यीशु के द्वारा आपको मिलेगा। So when you believe Jesus is the Son of God, और जब आप विश्वास करोगे कि प्रभु यीशु ये परमेश्वर का पुत्र है, your life will be different. आपकी जिंदगी बदल जाएगी। Believe in Jesus प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए and become an overcomer in the name of और Jesus. प्रभु यीशु के नाम में एक विजय पाने वाले आप हो जाएंगे। Many people might be calling you, you are a loser. और बहुत सारे लोग आपको ऐसा बोलते होंगे कि आप एक हारे हुए व्यक्ति हो। When Jesus was crucifying, जब प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, when He crucified, the people were mocking at Him. और जब वो क्रूस पर थे, बहुत से लोग उनका धिक्कार करते थे Just the people, they spit on His face और लोगों ने उनके मुंह पर थूका and they were beating Jesus. और उन्होंने प्रभु यीशु को मारा They nailed Him on the cross. और उन्होंने उनको क्रूस पर चढ़ाया। But Jesus was quiet. लेकिन प्रभु यीशु शांत थे। But on very third day after His death, लेकिन तीसरे ही दिन उनके मृत्यु के बाद He came back to life. वो फिर से जीवित हो उठे। That's why I'm telling you again and again. और इसलिए मैं आपको फिर से वही बात We बोल don't serve a dead God, हम but we serve a living God. हम मृत परमेश्वर की सेवा नहीं करते, तो हम जीवित परमेश्वर की सेवा करते। Our Lord is alive. हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। Jesus is alive. प्रभु यीशु जीवित परमेश्वर है। So what is the problem in your life? तो आपके जीवन में क्या समस्या है? What is difficult for you? आपके लिए क्या मुश्किल है? It is difficult for you. और जो आपके लिए मुश्किल है, But when you say, Lord, take control of my life, लेकिन जब आप बोलोगे कि प्रभु यीशु मेरे जो जिंदगी का आप कंट्रोल ले लीजिए, and when you say, Holy Spirit, take control of my life, और जब आप बोलोगे पवित्र आत्मा मेरे जिंदगी का कंट्रोल आप ले लीजिए, and what will happen? तब क्या होगा? That Holy Spirit will move in your life. वो पवित्र आत्मा आपके जिंदगी में कार्य करेगा The loser will become overcomer. और जो हारने वाला व्यक्ति हो वो जय पाने वाला हो जाए। This is the mystery mentioned in the scripture. और ये जो वचन में एक गूढ़ रहस्य बताया गया है। Why we are becoming overcomer after receiving Jesus? और क्यों हम जय पाने वाले हो जाते हैं जब हम प्रभु यीशु को स्वीकार करते हैं? Many a time it happens in the community. और बहुत बार जो समाज है, कम्युनिटी में होता है। One drunkard will tell another people, don't drink, this is bad. क्या होता है कि एक शराबी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बोलता है, दूसरे मनुष्य को बोलता है कि तू शराब मत पी, ये बहुत ही गलत आदत है। Nobody will listen to him. लेकिन उसका कोई नहीं सुनता। Somebody who is just quarreling all the time, and if that person says that, don't quarrel, this is bad thing. और ऐसा मनुष्य जो हमेशा झगड़ा करता है और वो दूसरों को बोलेगा कि तुम झगड़ा मत करो, तुम शांत रहो, Nobody will listen to that person. ऐसा व्यक्ति का कोई भी नहीं सुनेगा। So what I'm trying to tell you, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? if a conqueror will tell you become a conqueror, be a conqueror, then this will happen to your life. अगर एक जय पाने वाला व्यक्ति आपको बोलेगा कि आप जय पाने वाले हो, तो उसका Yes, then only the things will happen in your life. और आपकी जिंदगी में भी वही बातें होंगी। Losers cannot make you a conqueror. और जो हारने वाले व्यक्ति है वो आपको विजयी नहीं ठहरा The सकते। defeated person cannot make you a conqueror. हारा हुआ व्यक्ति आपको विजयी नहीं ठहरा सकता। The dead person cannot raise you on high. और जो मरा हुआ व्यक्ति है वो आपको उठा नहीं सकता। Amen. आमीन। So, my brothers and my sisters, और इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, the Bible says, बाइबल हमें बताती है, John
chapter 16 and verse 33. यूहन्ना इसका 16वां अध्याय और 33 वचन What the Bible says here? बाइबल हमें बताती है, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. यूहन्ना की किताब 16 अध्याय 16 and verse 33. मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि Mhm. तुम्हें मुझसे शांति मिले। Yes. संसार में तुम्हें क्लेश होता है, Read it again. संसार Sansar. में तुम्हें क्लेश होता है, Yes. And परंतु धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। Jesus is the only person. प्रभु यीशु इकलौते व्यक्ति है He tells you, come after me और वो आपको बोलेंगे कि मेरे पीछे आइए, and you will be having problems. और आप बहुत सारी समस्या आपके पास आएंगी। The people will mock at you. लोग आपको धिक्कारेंगे। Hallelujah. Many people they say, come to my church, come to my meeting, and every problem will go. बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि हमारे मीटिंग में आइए, हमारे कलीसिया में आइए और आपके सारे प्रॉब्लम्स निकल जाएंगे। But I am telling you, church, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कलीसिया, after coming to the Lord, प्रभु में आने के बाद sometime your problems may increase. कई बार This is आपका possible. आपकी जो समस्या है वो बढ़ जाती है। Hallelujah. Hallelujah. The people will start talking against you. और लोग आपके विरुद्ध में बात करना चालू करते हैं। And everything, whatever is happening in the believer's life, Jesus knows everything. और जो एक विश्वासी व्यक्ति के जीवन में होता है वो सब प्रभु यीशु को पता है। And that's why Lord is saying clearly, in this world you will be having difficulties. और इसलिए प्रभु यीशु ये स्पष्ट रीति से बोल रहे हैं कि इस संसार में तुम्हें क्लेश होता है। You will have trouble in this world. इस संसार में तुम्हें क्लेश होगा, But लेकिन take heart. धाड़स बांध। Amen. Be courageous. और धाड़स बांध। Why? क्यों? I have overcome the world. क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। Can you clap your hands for क्या आप Jesus? प्रभु यीशु के लिए ताली Is that बजाएंगे? Lord wonderful? हमारा परमेश्वर अद्भुत है ना? Hallelujah. He Hallelujah. says, I have overcome the world, and that's why you will overcome this world. और प्रभु यीशु ने कहा है कि मैंने संसार को जीत लिया, इसलिए आपने भी संसार को जीत लिया। Amen. Amen. Jesus says, I have overcome the world. और प्रभु यीशु ने कहा है कि मैंने संसार को जीत लिया है। Devil wanted to deceive Jesus. और जो शैतान है वो यीशु को धोखा देना In the same way, he tried to deceive Adam and Eve. और जिस तरह से उन्होंने आदम और हवा को जिस तरह से धोखा दिया, And that was the day of biggest failure of human being. और वो दिन था कि ये पूरी मानव जाति का एक हार का दिन था। That's that day Adam and Eve, they ate the fruit. और उस दिन आदम और हवा ने वो फल खाया। And what happened? और क्या हुआ? The sin entered into this world. और जो पाप है इस जगत में आ गया। And in the same way, और उसी तरह से devil tried to deceive Jesus. और इसी तरह से जो प्रभु यीशु को शैतान ने इसी तरह से प्रभु यीशु की परीक्षा ली। And he asked Jesus to make the bread out of the stones. और उसने कहा कि प्रभु यीशु को उसने कहा कि ये जो पत्थर है इससे तू रोटी बना। He asked several questions to Jesus. और उसने बहुत सारे प्रश्न प्रभु यीशु को पूछे। But you can go and read carefully. लेकिन आप पढ़िए, ये बहुत ही ध्यान देकर पढ़िए। Jesus answered the devil only from the scriptures. प्रभु यीशु ने जो शैतान को जो उत्तर दिया वो सब वचन में से उसे उत्तर दिया। So when you are dealing with the demons, लेकिन इसलिए जब आप शैतान से आप डील करते हो, don't talk with your own wisdom. और Speak through the word of God. और खुद की समझ से मत बोलिए, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है उसके द्वारा आप बात कीजिए। If somebody will slap you, अगर आपको कोई मारेगा, what you will do? आप क्या करोगे? It is written in the Bible. The answer is there in the Bible. और बाइबल में उसका उत्तर है। What you will do? आप क्या करोगे? If somebody will slap you, अगर कोई आपको मारेगा तो आप क्या करोगे? what you will do? आप क्या करोगे? It is written in the Bible. ये बाइबल में लिखा हुआ है। Even the Mahatma Gandhi, he knew what is written in the Bible. और जो हमारे महात्मा गांधी है, उनको भी पता है कि बाइबल में क्या He लिखा हुआ है। followed
what is written in the Bible. और जो बाइबल में ये बातें लिखी है ये सब उन्होंने फॉलो की And he became a great man of India और ये भारत के एक महान व्यक्ति वो हो चुके and father of nation of India. और भारत देश के वो एक बापूजी बन गए. Amen. Hallelujah. In the same way, और उसी तरह से whenever you follow the scriptures, जब आप वचन के अनुसार चलोगे the automatically that greatness will come to you. वो सामर्थ्य आप में आ जाएगा. Amen. आमीन. So the Jesus says that इसलिए प्रभु यीशु ने कहा I have overcome the world. मैंने इस संसार को जीत लिया है. For the first Adam, पहला जो आदम था that Adam and Eve, they got deceived by the devil. और जो आदम और हवा थी उनके वो शैतान के द्वारा हार गए थे. But the second Adam, लेकिन जो दूसरा आदम है that is Jesus Christ. जो प्रभु यीशु है. Hallelujah. हालेलुया. What happened? क्या हुआ? He answered the devil from the scriptures and devil fled from that place. प्रभु यीशु ने वचनों के द्वारा शैतान को उत्तर दिया और जो शैतान है वहां से निकल गया. Hallelujah. हालेलुया. When you are fully loaded with the scriptures. जब आप वचनों से पूरी तरह से भरे हुए होते हैं. Hallelujah. Devil cannot touch you. शैतान आपको टच नहीं कर सकता. Hallelujah. Those who the people those have just they have faith in healings and deliverance. Just they don't focus on the scriptures. Their faith can be shaken. और जिन लोगों का सिर्फ चंगाई या फिर दूसरे चमत्कारों पर विश्वास होता है और वो वचन पे विश्वास नहीं रखते वो उनका विश्वास हिल जाता है. Because today you have healing, maybe next day you can have another sickness. It is possible. क्योंकि आज अगर आपको चंगाई मिलेगी तो कल आपको चंगाई नहीं मिल सकती या फिर दूसरा बीमारी आपके अंदर आ सकती है. With the prayers, the prosperity can come. It can go. It is possible. और प्रार्थना से प्रॉस्पेरिटी आ सकती है लेकिन वो प्रॉस्पेरिटी वो जा भी सकती है. But the one and only thing that is stable and that is the word of God. It is forever. और एक ही चीज है वो दृढ़ है जो परमेश्वर का वचन है और वो सदा के लिए है. When you have faith in the word of God, जब आप पर प्रभु यीशु के वचनों पर आपका विश्वास होगा you will become an overcomer. आप एक विजयी ठहरेंगे. In the beginning was the word was with God and the word was God. शुरुआत में वचन था और वचन पर परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था. Amen. That word is Lord Jesus. और वो शब्द वो वचन प्रभु यीशु है. So when you proclaim that word, और जब आप वो वचन बोलेंगे that word brings the victory. और वो वचन आपके लिए विजय लाएगा. Amen. Amen. So Jesus have overcome the world. और जो प्रभु यीशु है उन्होंने संसार पर जय पाया है. Amen. Hallelujah. Jesus, he overcome the world. प्रभु यीशु ने संसार पर जय पाया है. And that's why what will happen to us? और इसलिए हमारे साथ क्या हो रहा है? 1 John chapter 4 and verse 4. पहला यूहन्ना इसका 5वां अध्याय और 5वां वचन. 4:4. 1 John 4:4. पहला यूहन्ना 4था अध्याय और 4था वचन. Yes. You, dear children, are from God and have overcome them, because the one who is in you is greater than the one who is in the world. Amen. Hallelujah. 1 John. Yeah. Chapter 4 verse 4. पहला यूहन्ना 4था अध्याय 4था वचन. हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है. Amen. आमीन. Greater is he that is in me than he that is in the world. जो तुम में है वह उस से जो संसार में है बड़ा है. Amen. Hallelujah. What you have inside, आपके अंदर जो है, you have Holy Spirit in you. आपके अंदर पवित्र आत्मा है. And when you say Jesus is in me, और जब आप ऐसे बोलते हो कि प्रभु यीशु मुझ में है, the Creator is inside of you. और जो निर्माण करता है वो मुझ में The है. God who created heavens and the earth, he dwells inside of और you. जो परमेश्वर है इसने स्वर्ग और पृथ्वी बनाई वो मुझ में है. The light of the world is inside of you. और इस जगत का जो
प्रकाश है वो आपके अंदर है। Alpha and Omega is inside of you. अल्फा और ओमेगा आपके अंदर है। That fire of God is inside of और you. परमेश्वर का अग्नि आपके अंदर That है। Holy Spirit is in you. और पवित्र आत्मा आपके अंदर You are है। full of God's glory. और परमेश्वर की महिमा से आप भरे And हुए when हो। you say, I am full of God's और glory, जब आप ऐसे बोलते हो कि मैं परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ हूँ, how you can lose your battle? आप अपना जो युद्ध है वो कैसे हारेंगे? This is not possible. ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। Hallelujah. When you Hallelujah. say, I have Jesus in me. और जब आप बोलते हैं कि प्रभु यीशु मुझ में है, Hallelujah. The tradition, parampara. You know this word, parampara. और आपको पता है कि परंपरा ये शब्द, The parampara of God is to have victory in everything. और जो परमेश्वर की परंपरा है कि हर एक चीज में आप जय पाए हुए हो। And the parampara of the devil is to lose all the time. और जो शैतान है उसकी परंपरा है कि वो हर एक चीज में हारा हुआ है। Today, I will take this opportunity to tell you the name of the biggest loser of this world. और मैं आज आपको ये अपॉर्चुनिटी लेता हूँ कि आपको इस जगत के एक सबसे बड़ा हारा हुआ व्यक्ति का नाम आपको बोलूं। The biggest loser is the Satan. और जो बहुत ही जो हारा हुआ, सबसे ज्यादा हारा हुआ व्यक्ति जो है वो शैतान है। Can you say amen? क्या आप आमीन बोल सकते हैं? शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ. Jesus is the conqueror आमीन। and devil is a loser. और प्रभु यीशु महाविजयी है और जो शैतान है वो हारा हुआ है। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों और बहनों, I will share one experience that God has given me in my life. और मैं एक एक्सपीरियंस आपके साथ बोलना चाहता हूँ जो परमेश्वर ने मुझे दिया। When I was in my college, when I was studying, और जब मैं कॉलेज में था, मैं पढ़ाई कर रहा था, and my teacher, he said on the Saturday, on Monday, you will be having one exam. और मेरा जो टीचर था उन्होंने कहा था कि शनिवार को उन्होंने कहा था कि जो सोमवार को तुम्हारा एग्जाम है। And he gave whole portion for the Monday exam. और जो मंडे को एग्जाम थी, सारा पोर्शन उन्होंने दिया था। And it was very big portion. और बहुत ही ज्यादा पोर्शन था। And I said, how I will complete this? और मुझे लगा था कि ये सब मैं कैसे पूरा करूंगा। So what I did, फिर मैंने क्या किया? I went to the church, I did everything, but I did not study. मैं चर्च को गया, मैंने सब कुछ किया, लेकिन मैंने पढ़ाई नहीं की। This is the mistake of all the believers. और सब विश्वासी लोगों को यही पे When they believe in God, they don't want to study. और जब वो परमेश्वर पे विश्वास करते, वो पढ़ाई नहीं करना चाहते। But see how God worked for me. लेकिन देखिए कि परमेश्वर ने मेरे लिए कैसे कार्य किया। So Saturday, Sunday, I did not study anything. तो शनिवार और रविवार को मैंने कोई भी स्टडी नहीं किया। And on Monday, और जब सोमवार आया, my mother, she asked me, can you come with me to Goregaon to meet some relatives? I said, yes, I'm ready. We'll go there. और मेरी मम्मी ने कहा कि आप मेरे साथ गोरेगांव आओ, जहाँ वहाँ पे हम रिश्तेदारों के पास जा रहे हो। और मैं झट से रेडी हो गया। I bunked the college. और मैं कॉलेज को that नहीं day. गया। And I went to my relatives' और place. मेरे जो रिश्तेदार है उनके यहाँ में गया। And evening I came back on Thursday and Tuesday. I went to the college. और जब शाम को मैं आया और दूसरे दिन कॉलेज में मैं गया। And when I was sitting in my classroom, और जब मैं मेरे क्लास में बैठा था, the same teacher who wanted to take the exam on Monday, he came to the class. और वही जो टीचर थी जो मंडे को मेरा एग्जाम लेने वाली थी, वो आए। And he said, और उन्होंने कहा, it was difficult for me to come yesterday to take your exam, but I will take your exams today. मुझे ये कल मैं आ नहीं पाया, लेकिन आज मैं आपकी परीक्षा लूंगा। So I will give you half an hour break और मैं आधे घंटे का आपके ब्रेक देता हूँ to revise everything. और सब कुछ रिवाइज कर And लीजिए। then after your exam will start. और फिर आपकी जो परीक्षा है वो शुरू हो जाएगी। Just I closed my eyes और मैंने अपने आंखों को बंद and I किया was seeing और मैंने देखा Jonah. योना को। I was seeing Jonah. और मैंने योना को देखा I said, Lord, और मैंने परमेश्वर से I बोला, was running away from my exam. मैं मेरी परीक्षा से भाग रहा था, And what you did for me? लेकिन आपने क्या किया? You canceled the exam for yesterday. आपने कल की जो सोमवार की एग्जाम कैंसिल कर दी। Now I can't run anywhere.
अब मैं कहीं नहीं भाग सकता। So Lord, help me. तो परमेश्वर मेरी मदद कीजिए। So it was a half an hour break, और जो आधे घंटे का ब्रेक दिया था, and the teacher went to the teacher's room. और जो मेरे टीचर थे वो टीचर्स रूम में चले गए, So there was one empty class. I went there. और एक खाली क्लास था, वहाँ पे मैं चला गया, I read Psalms 23. और जो भजन संहिता 23 अध्याय मैंने पढ़ा। God is my shepherd, I shall not be in want. और परमेश्वर मेरा चरवाहा है और मुझे किसी भी चीज की घटी नहीं होगी। And I had notes in my hands. और मेरे हाथ में कुछ नोट्स थे। I prayed and I said, whatever I'm reading, Lord, give me wisdom to understand this. और मेरे हाथ में नोट्स थे, और मैंने उस पर प्रार्थना की कि परमेश्वर ये जो कुछ भी मैं पढ़ूंगा मुझे समझ दे कि ये सब मैं समझ जाऊं। And just I started reading it, और मैंने पढ़ना शुरू किया, page after the page. और मैंने सारे पन्ने पढ़े। Just I was overlooking, I was reading everything quickly. Just I was going through it. और मैं जल्दी जल्दी सब पढ़ रहा था। And somebody said, Vikas, come. और किसी ने मुझे बुलाया The कि चलो exam चलो, will start in 2 अभी minutes. एग्जाम शुरू हो रहा है। So I went in the classroom, और मैं क्लास में चला गया, and the paper came, the question paper came. और जो परीक्षा का पेपर था वो आया। I said, now Lord, take control of my life. I want to write this paper. और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि परमेश्वर आप पूरी तरह से मेरा कंट्रोल ले लीजिए, मैं ये पेपर में लिखना चाहता हूँ। And what I wrote, church, believe. और मैंने जो कुछ भी लिखा, What I wrote it in the name of और Jesus. जो कुछ भी मैंने लिखा है प्रभु यीशु के नाम में मैंने लिखा। And when the result came for the paper, और जब उसका रिजल्ट आया for that exam, उस एग्जाम परीक्षा के लिए, I was the topper in my college. मेरे कॉलेज में मैं पहला आया। Can you say amen to that? क्या आप आमीन कह सकते हैं? When you will try to run here and there, but when you say, Lord, I'm ready for this battle, जब आप यहाँ वहाँ भागते हैं, लेकिन जब आप कहते हैं कि प्रभु मैं तैयार हूँ ये युद्ध लड़ने के लिए, मैं तैयार हूँ, I challenge you in the name of मैं Jesus प्रभु यीशु के नाम में आपको चुनौती देता that हूँ, victory belongs to you. जय आप ही पाओगे। Because when you believe in Jesus, क्योंकि आप जब प्रभु यीशु पर विश्वास you are not करेंगे, believing in the stones and the dead things. आप किसी भी पत्थर पर या किसी भी मरी हुई चीज पर विश्वास नहीं But रखते। when you believe the God who is in heaven, लेकिन जब आप विश्वास रखते हो उस परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है, He will open the doors of heaven and He will pour His blessings on you. वो स्वर्ग के दरवाजे आपके लिए खोलेगा और सारी आशीषें आप पर बरसाएगा। So why you will overcome? इसलिए क्यों आप जय पाते हैं? Because the overcomer sits inside of you. क्योंकि जो जय पाया हुआ है वो आपके अंदर बैठा हुआ है। Amen to that. Amen. Hallelujah. When you Hallelujah. say Jesus is in me, जब आप बोलते हैं कि यीशु मेरे अंदर है, don't take it lightly. उसे हल्के में मत लीजिए। The most powerful God is in you. जो सबसे सामर्थ्यशाली परमेश्वर है वो आपके अंदर है। So how I can make such a strong statement that the losers will not go to the heaven? क्यों मैंने ये वाक्य किया कि जो हारे हुए लोग हैं वो स्वर्ग में नहीं जा सकते? Some people, they might be confused. कुछ लोग बहुत कंफ्यूजन में होते हैं, And they might be thinking after reading this and after listening this, how it is possible? Why the losers will not go to the heaven? और वो जब ऐसा पढ़ते हैं कि क्यों जो हारे हुए व्यक्ति है वो क्यों स्वर्ग में नहीं जा सकते? My dear brothers and मेरे sisters, प्रिय भाइयों और बहनों, the devil will bring opportunity to commit the sins. और जो ये शैतान है वो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी लाता है कि आप पाप में गिर जाओ, पड़ And जाओ। when you will take that opportunity, और जब आप वो उस चीज का चुनाव करते हो, what the devil has brought to you, if you will take that, you will become loser because of the devil, because devil is the biggest loser. जो शैतान ने आपके लिए लाया है, जब वो आप ले लेते हो तो आप हार जाते हो, क्योंकि शैतान हारा हुआ है। The loser will bring that worst thing to your life because you are listening to him. जो शैतान है आपके लिए बहुत ही वर्स्ट थिंग लाएगा, जो जिसके कारण आप पाप में पड़ जाओगे। Loser can bring the loss. और जो हारा हुआ है वो आपके लिए हार लाएगा।
Hallelujah. Hallelujah. But when the Jesus will come to you, लेकिन जब प्रभु यीशु आपके पास आएंगे, He is a victorious वो विजयी है and He will bring victory to और you. वो आपके लिए जय लाएगा Now it is up to you. और ये आपके ऊपर है। Hallelujah. With the great victory, Jesus went to the heaven. और बहुत ही बड़े विजय के साथ प्रभु यीशु स्वर्ग में गए। Jesus did not went to the heaven as a loser, but He went to the heaven as a victorious one. प्रभु यीशु स्वर्ग में जब गए तो वो एक महाविजय होकर गए, वो हारे हुए नहीं गए। So when you read the book of Revelation, और जब आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ते हैं and there 1,44,000 people are there, 1,44,000. और 1,44,000 लोग वहाँ पे थे All these people, they are the Jews, और ये सब यहूदी थे and these all the people, they are victorious और people. ये सब जय पाने वाले व्यक्ति थे। Hallelujah. These are the people of God. और ये सब परमेश्वर के लोग The थे। people who will take part in the rapture, all people, they are victorious one. और जो पुनरुत्थान में जो हिस्सा लेने वाले ये सारे लोग थे, ये महाविजयी लोग थे। And when in the rapture, even in the people, they will resurrect. In all these events, when the people will go to the heaven, all the people, they are the victorious people. और जो उठा लिए जाएंगे वो सभी जय पाए हुए लोग हैं। If you believe, you are victorious. अगर आप विश्वास रखते हैं कि आप जय पाए हुए हैं, According to Revelation chapter 2 and verse 7, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और 7वां वचन, if you are an overcomer, अगर आप जय पाए हुए हैं, you will have the fruit of life. आपके पास फ्रूट ऑफ लाइफ है। If you are a victorious, if you are an overcomer, God will bless you with the fruit of life. अगर आप जय पाए हुए हैं तो जीवन के पेड़ का फल आपके पास होगा। According to Revelation 2:11, और प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और 11 वचन के अनुसार, you are a conqueror, अगर आप विजयी हैं, if you are an overcomer, अगर आप जय पाए हुए the हैं, second death, that is the hell, will never come near to you. जो दूसरी मृत्यु है उसकी हानि आपको नहीं होगी। According to Revelation chapter 2 and verse 17, और प्रकाशित वाक्य इसका 2 अध्याय और 17 वचन, if you are an overcomer, अगर आप जय पाए हुए in हैं, heaven God will give you the manna, और स्वर्ग में प्रभु आपको गुप्त मानना देगा, and He will give you a white stone, और वो आपको श्वेत पत्थर देगा, and He will give you a new name. और आपको एक नया नाम देगा। According to Revelation chapter 2 और प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय verse 26 to 28, और 26 से 28 वचन, if you are an overcomer, अगर आप जय पाए हुए हो, God will give you a morning star. पर प्रभु आपको भोर का तारा देगा। According to Revelation chapter 3 और प्रकाशित वाक्य इसका 3 अध्याय verses 5 and 6, 5 और 6 वचन, God will give you the white garments, परमेश्वर आपको श्वेत कपड़ा देगा, and your names will be written in the book of life. और जो जीवन की पुस्तक है उससे उस पुस्तक में वो आपका नाम लिखेगा, And God will accept you before the angels and before the heaven. और परमेश्वर सारे स्वर्ग और स्वर्गदूतों के सामने आपको मान लेगा। If you are a conqueror, अगर आप विजयी हैं, Revelation chapter 3 verse 12, प्रकाशित वाक्य इसका 3 अध्याय 12 वचन, God will make you the pillar of the temple of God in heaven. और परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा परमेश्वर आपको बनाएगा, And on that pillar, God will write the name of Almighty God, और उस खंबे पर परमेश्वर नाम लिखेगा, name of God, परमेश्वर का नाम लिखेगा, name of Jerusalem, New और Jerusalem, जो नई यरूशलेम उसका नाम लिखेगा, and the new name of Jesus. और यीशु का नया नाम लिखेगा। Amen. Hallelujah. हालेलुया। If you are an overcomer, अगर आप विजयी है, Revelation chapter 3 verse 21, और प्रकाशित वाक्य इसका 3 अध्याय और 21 वचन, hallelujah, the Hallelujah. biggest thing I can say, biggest thing in और एक heaven. बहुत बड़ी बात मैं स्वर्ग में आपके लिए बोलना And चाहता what हूँ, is the thing? और वो क्या है? If you are an overcomer, अगर आप जय पाए हुए हैं, you will be sitting next to Jesus on his throne. प्रभु यीशु के साथ उसके सिंहासन पर आप बैठोगे, That throne is not for the losers. और वो जो सिंहासन है वो हारे हुए लोगों के लिए नहीं है, That is not for the losers. और वो हारे हुए लोगों के लिए That नहीं है, throne is for the victorious people. और वो जो सिंहासन है वो विजयी लोगों के लिए है। Some people might be thinking, how we can sit
with Jesus on his throne? How it is possible? कुछ लोग ऐसा सोचते होंगे कि कैसे मैं यीशु के साथ बैठूंगा। Have you ever been to any wedding? आप किसी शादी में गए हैं? When we got married, Pallavi and myself, when we और जब got हमारी married, शादी हुई when I was sitting on the chair, और जब मैं कुर्सी पे बैठा हुआ था, where did you sit? मैं कहाँ पे बैठी थी? Somewhere behind. और पीछे कहीं पे बैठी थी क्या? No. नहीं। Bride should sit with the groom. और जो वर है उसके साथ वधू बैठती है। Amen. In the same way, और उसी तरह से I challenge you. मैं आपको चुनौती देता हूँ। One day, you all, those who are watching me live, और एक दिन जो आप सब जो मुझे लाइव देख रहे हैं, hallelujah, one day, एक दिन, still today, आज तक, you might have seated with the ungodly people. आप ऐसे लोगों के साथ बैठे होंगे जो विश्वासी नहीं है। You might have seated with the bad people of this world. और इस जगत के बहुत ही बुरे लोगों के साथ आप बैठे होंगे। You might have seated in the sin. और आप पाप करने वाले लोगों के साथ बैठे होंगे। But one day, लेकिन एक दिन you will sit with your God. आप आपके परमेश्वर के साथ बैठोगे। You will sit with Jesus. आप यीशु के साथ बैठोगे। Where? कहाँ पे? On his throne. उसके सिंहासन। 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 So all these blessings I have read for you. और ये सब आशीषें मैंने जो अभी पढ़ी है। These blessings are not for the losers. और ये सब जो आशीषें है ये हारे हुए व्यक्ति के लिए नहीं है। If you are a conqueror in the 99 things, अगर आप 99 चीजों में विजयी है, and if you are a loser in one thing, और एक चीज में आप हारे हुए हो, even you are loser in one thing, you are a loser. अगर आप एक बात में हारे हुए तो आप हारे हुए हो। Try to understand. समझने की कोशिश कीजिए। When you say, I am a victorious in everything, जब आप कहते हो कि हर एक बात में मैं विजयी हूँ, if devil is trying to put you in the adultery, अगर शैतान चाहता है कि वो आपको व्यभिचार में डाले, if devil is pulling you into the adultery, और अगर शैतान आपको व्यभिचार में खींच रहा है, or devil is trying to put bad thoughts in your mind, go and do this and that, अगर शैतान आपके मन में ये डाल रहा है कि जाओ चोरी करो, जाओ बुरी बातें करो, so whatever devil is bringing to you, और जो कुछ शैतान आपके पास ला रहा है, but when you say, I am covered with the blood of Jesus, लेकिन जब आप ऐसे बोलते हो कि मैं प्रभु यीशु के लहू के and you द्वारा, rebuke all those bad things, और जब आप उस सब बुरी चीजों को डांटते हो, then you are an overcomer. तब आप विजयी हो जाते हो। Hallelujah. You Hallelujah. have to overcome this world. आपको इस संसार पर जय पाना है। If you believe in Jesus, already you have overcome. अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास रखते हैं तो वो आप पहले से ही विजयी हैं। So tonight I am going to pray for you. इसलिए आज रात में आपके लिए प्रार्थना Just करना close your eyes and we'll pray together. अपने आंखों को हम बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। If you have any prayer requests, I want you to type in the comment box. अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में। Quickly type your जल्दी prayer से आप टाइप request. We कीजिए are going to कमेंट pray. बॉक्स में। Thank you, Jesus. Glory. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We'll pray now. हम प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, we come to you in the name of Jesus. प्यारे स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। Abba Father, we bow down before you. और परमेश्वर पिता, हम आपके सामने घुटने टेकते हैं। Thank you, Jesus, for speaking to us. आज आपने हमसे बातें की, इसलिए आपका धन्यवाद। Lord, प्रभु, the scriptures tells us clearly, और वचन हमें स्पष्ट रीति से बताते हैं, heaven is for the overcomers. और जो स्वर्ग है वो विजयी लोगों के लिए है। Heaven is for the conquerors. और जो स्वर्ग है वो जय पाए हुए लोगों के लिए। Lord, we were unworthy. हम इस लायक नहीं थे We were परमेश्वर, nothing, हम कुछ भी नहीं थे but परमेश्वर, through the power of cross of Jesus, लेकिन प्रभु यीशु के क्रूस की सामर्थ के द्वारा, through the blood of Jesus, प्रभु यीशु के लहू की सामर्थ के द्वारा, you made us more than a conqueror. आपने हमें महाविजय से भी बढ़कर बनाया। Thank you, Jesus, for giving us that marvelous victory. धन्यवाद यीशु, आपने महाविजय हमें दिया। The church is the church
which has overcome this world. और जो कलीसिया वो कलीसिया है जो ये संसार को जय पाई हुई है। Church has overcome every bad things of this world. और चर्च जो कलीसिया है ये संसार की सारी बुराइयों को के ऊपर जय पाई हुई है। Thank you, Jesus, for the divine victory that you have given us. धन्यवाद यीशु, आपने हमें ये जय दी है। We give you glory and honor to your name. सारा आदर और महिमा आपके नाम को। Those who are watching us live, और जो मुझे लाइव देख रहे हैं, Lord, bless them in a mighty way. उन सभी को आप आशीषित कीजिए। Abba Father, we pray for Brother Ajay Maske. और परमेश्वर पिता, हम ब्रदर अजय मस्के इनके लिए Bless प्रार्थना him, करते Lord. हैं। उनको आप आशीषित कीजिए। Use him for your glory. आपकी महिमा के लिए उनको इस्तेमाल कीजिए। Thank you, Jesus, for his 100% recovery from the COVID-19. और प्रभु आपको धन्यवाद देता हूँ कि कोविड-19 की सारी उन्हें चंगाई देने के लिए। Thank you, Jesus, for healing him completely. उन्हें पूरी तरह से चंगाई देने के लिए आपको Bless धन्यवाद। whole Maske family और सारी मस्के फैमिली को आप आशीष and कीजिए। use them for your glory. और आपकी महिमा के लिए इनको Bless इस्तेमाल dear कीजिए। sister Gayatri. और सिस्टर गायत्री इनको आप Use her आशीष for कीजिए। your glory, Lord. आपकी महिमा के लिए इनका Sister इस्तेमाल Vinita and her family. कीजिए। सिस्टर विनीता और उनकी फैमिली के लिए Lord, मैं प्रार्थना करता we pray for Brother Ricky Roy. हूँ। ब्रदर रिकी रॉय इनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। Lord, we pray for Sister Salome Darekar. सिस्टर सलोमी दरेकर इनके लिए मैं प्रार्थना करता Bless her, Lord. हूँ। उन्हें आशीषित कीजिए। Use for your glory. आपकी महिमा के लिए इनका Lord, we इस्तेमाल pray कीजिए। for Brother Anil. ब्रदर अनिल के लिए मैं प्रार्थना Use करता him for your glory. हूँ। आपकी महिमा के लिए उनका Thank you, इस्तेमाल Jesus. कीजिए। धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord, for everything. धन्यवाद परमेश्वर। Abba हर एक Father, चीज़ today we declare और स्वर्गीय पिता, मैं ये डिक्लेयर करता हूँ। church is not the place of the losers. और जो कलीसिया है हारे हुए लोगों के लिए नहीं, The church is the place where the losers are turned into the overcomer. लेकिन कलीसिया ऐसी जगह है जहाँ पे हारे हुए लोग विजयी बन जाते हैं। Thank you, Jesus. और धन्यवाद यीशु, You have given us mighty victory आपने हमें एक बड़ा विजय दिया over the devil and over this world. और इस जगत पर और इस शैतान पर आपने जीत दिलाई। We give you glory and honor to your name. सारा आदर और महिमा आपके In नाम पर। Jesus' matchless name we pray. प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं इसलिए आपसे। Amen. 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 Hallelujah. हालेलुया, Amen. हालेलुया। Can you type Amen? Hallelujah. आमीन और हालेलुया टाइप कर सकते हैं। Are you blessed today? क्या आप आज आशीषित हुए? Are you blessed? क्या आप आशीषित हुए? If you are blessed, अगर आप आशीषित हुए हैं, I want you to type something in the comment box. मैं चाहता हूँ कि आप कुछ टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में। Amen. आमीन। Hallelujah. May हालेलुया। God bless you. प्रभु आपको आशीषित करें। Thank you, He Foundation, for this wonderful opportunity for us to preach the gospel. और ये बहुत अच्छी सी अपॉर्चुनिटी दी है ही फाउंडेशन ने, इसके लिए उन्हें थैंक यू। And in coming days, we will go more and more deeper into the book of Revelation. और आने वाले दिनों में ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में और हम गहराई में जाएंगे। Amen. आमीन। May God bless you. परमेश्वर Bye. आशीषित Thank you. करे। बाय। Thank you. धन्यवाद।